Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Saima Zaidi. The story that we are going to discuss today is Araby. Girls, Araby is written by James Joyce. James Joyce is known as a stream of consciousness writer. Stream of consciousness is a way of writing in which the writer directly takes us into the mind of the character and shows us what is happening there. So the character tells his story himself. The main character of Araby is a young boy. He narrates his story himself. He lives in a blind alley with his uncle and auntie. This house was once owned by some priest who has left his books there in an attic room. Now the boy reads those books. This boy is the only child in the house. He plays in the street with another boy whose name is Mangan. Mangan's had a sister. She comes to the doorstep to call him, to call her brother. She she watches the girl in the light of half shut door. Girls, this boy who is the narrator of the story, he watches the girl in the light of half shut door. He watches her figure, dress and hair closely. He falls in passionate love with her. Whenever she comes out of her house, his heart begins to beat. He picks up his books and follows her. But when she is about to see him, he returns. Sometimes he lies on the floor, looks at her door, and is satisfied. At times, he stands in the railing and imagines the girl to be there. In the classroom, her image comes between him and the pages of the book. He repeats her name again and again. He weeps bitterly for her. One day, the girl addresses him. It was a very important day for the boy because she talked to him. He was totally perplexed. She asked him if he has visited Araby. He does not know what to answer. He assures her of visiting Araby and bringing some gift for her. She gets uh, so she gets what he told her. She now she goes away. The boy now gets some money from his uncle and goes to Araby. Actually, he gets the money with a great effort. He was waiting and waiting for the return of the uncle. And at the dinner table, now he gets some money. Now most of the shops, he reaches Araby. He goes to Araby. Now most of the shops are closed. Most of the lights are switched off. He goes to an open stall. The sales girl asks him if he wishes to buy something, but in his usual shyness and confusion, he says, "No, thank you." Then he finds himself alone in the bazaar. So, this is the story. Now, when he cannot buy anything and he has reached there after a great struggle, he got the ticket of the train and he went there, but he could not buy anything for the girl. Now he is severely shocked. He comes face to face with reality.
He loves the girl passionately, but he can buy nothing for her. Even his uncle does not understand and gives him more money because the uncle thought that he could not buy because he needed more money. So he gives him more money. The objective world does not sympathize with him because the people do not understand his problem. The boy is very shy. He cannot communicate with the people. In this way, the young boy is disillusioned when he comes face to face with the objective world. He comes back from Araby broken hearted, confused and dejected. All his dreams are shattered at once. Girls, this boy suffers from internal and external conflict. He is very shy. His love is one sided. His shyness always hinders his way. He suffers from psychological complexes. External world also becomes a cause of his failure. He is haunted by many doubts and fears. The boy is orphan. He is adopted by his uncle and aunt. He is deprived of paternal love. He is the only child in the house. He has no sisters and brothers to share his joys and sorrows. Thus, the boy seems emotionally suppressed. He has nobody to communicate. He is thirsty of affection. He at once falls in love with the girl, but lack of confidence hinders his way. He cannot express his love despite all his efforts. Therefore, he is totally disillusioned. Girls, this was the story of today. Girls, now we have to prepare long questions, right? गर्ल्स थर्ड ईयर में आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होते हैं। गर्ल्स, ये जो हमारा शॉर्ट स्टोरीज का जो हमारा पार्ट है हमारी बुक का, आपको पता है हमारी बुक दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। पहले पार्ट में हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और दूसरे पार्ट में हमारे पास प्लेज़ हैं। तो जो शॉर्ट स्टोरीज़ वाला हमारा पार्ट है, यहाँ से हमें दो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। गर्ल्स, इट इज़ ओनली एक्चुअली वन क्वेश्चन एंड वी हैव पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है ना, हमारे पास बेसिकली 15 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है दैट विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। 7.5 and 7.5 marks are allotted to each question। हमारे पास एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है और हर पार्ट के 7.5 मार्क्स हैं। टोटल मिला के 15 मार्क्स बनते हैं। ठीक है ना गर्ल्स? तो अब एक बात आपने ये याद रखनी है कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी इसमें आप हमारे पास चॉइस भी होती है। ठीक है ना, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, उसके बाद हमारे पास और लिखा हुआ था पेपर में और इसके बाद हमारे पास फिर एक पेयर ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि एक कंप्लीट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं। तो गर्ल्स, बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं पेपर में कि वो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक पेयर ऑफ क्वेश्चन में से चूज़ कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेयर ऑफ क्वेश्चन में से चूज़ कर लेते हैं। इस तरह गर्ल्स आपको सिर्फ एक पार्ट के नंबर मिलते हैं और दूसरा पार्ट आपका ज़ाया हो जाता है क्योंकि आपने पूरा पेयर अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, या तो दो क्वेश्चंस पार्ट ए बी वो आपने अटेम्प्ट करना है या फिर उसके बाद जो चॉइस में आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दोनों के दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप एक पेयर में से एक क्वेश्चन ले लें दूसरे पेयर में से एक ले लें, ऐसे ही नहीं करना आपने। इस तरह फिर आपको ज़ाया हो जाता है टाइम भी और मार्क्स भी ज़ाहिर करने मिलते फिर आपको ना। तो 15 मार्क्स का आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें से शॉर्ट स्टोरीज़ में से। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन दोनों पार्ट्स आपने करने हैं तो फिर इंशाल्लाह 15 मार्क्स का आपका ये अटेम्प्ट हो जाएगा।
तो आपने ये अच्छी तरह से क्वेश्चंस गर्ल्स याद करने, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। और क्वेश्चंस जो है ना इसमें, वो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से ज़बानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी आपने ज़बानी याद करना है। और इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी आपने ज़बानी याद करना है। 1, 3 और 4 ये क्वेश्चंस आपने ज़बानी याद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की आपने रीडिंग करनी है। और गर्ल्स जहाँ पर स्टोरी जो है वो रिपीट हो रही है बार बार, कि इंट्रोडक्शन के साथ रिपीट हो रही है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन आप सिर्फ एक ही बार याद करें स्टोरी का, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आप एक बार याद करें, बाकी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जाहिर है कि क्वेश्चन के मुताबिक ही होता है। स्टोरी तो जाहिर है कि एक ही होती है, लेकिन उसको मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ता है। जिस अंदाज में, जिस एंगल से क्वेश्चन ज़ाहिर है कि जो पूछा गया है, तो उस एंगल से, उसी नज़रिए से, उसी अंदाज से हमें स्टोरी को जज करना होता है। उसी से हमें स्टोरी को एनालाइज करना होता है कि जिस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो, आंसर जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए गर्ल्स, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का जवाब सिर्फ समरी नहीं होती। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो होती है उसमें पॉइंट्स तो सारे कवर होते हैं, स्टोरी ज़ाहिर है कि सारी बताई गई होती है, लेकिन जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है ना, तो उसका आंसर भी ज़रूर वहाँ पर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है और आपने उसी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना गर्ल्स। अब कोटेशन अगर टेक्स्ट में से कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गर्ल्स जो भी आप याद कर रहे हैं, 1 आप याद करेंगे, और आप 1 जो है वो ज़रा समरी टाइप क्वेश्चन है, वो आप याद करेंगे। और इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन जो मैंने 3 और 4 आपसे कहा है, वो बस इसमें स्टोरी को बार बार, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप इंट्रोडक्शन और सिंपल स्टोरी को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आपके पास टाइम है और एक कंसिडरेबल लेंथ आप देना चाह रहे हैं आंसर को, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि आप दूसरे क्वेश्चंस के भी मेन पॉइंट्स को ना बस थोड़ा थोड़ा सा टच कर लें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर जो है वो अच्छा सा बन जाता है। टू द पॉइंट भी आंसर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और थीम्स को 2-4 लाइंस में टच कर लें तो अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, ठीक है ना गर्ल्स। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर का पेपर बहुत लंबा होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, और आपको पता है कि इस आप आपको पता है कि इसमें आपके पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ज़ाहिर है आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना भी टाइम नहीं देंगी। बेशक आप डायरेक्ट ही आंसर अपना कर लें और बाकी चीज़ों को टच अगर ना भी करना चाहें तो इट्स ओके, वो मैं आपसे ऐसे ही कह रही थी। तो अच्छा होता है वैसे, लेकिन टाइम ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि आपने सारा का सारा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टेक्स्ट का पार्ट है बच्चों, आपने ये जो हमारे ये स्टोरीज़ हैं और प्लेज़ हैं, और इसके अलावा हमारे पास पोइम्स वगैरह हैं, इन सब पे ऐसे ही पेयर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, स्टोरी के बारे में। तो आपने सारे पेयर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं गर्ल्स। और बाकी लेटर है आपका, आपको पता है हम गर्ल्स क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, और हमारे सिर्फ थोड़े से पैराग्राफ, मेरे ख्याल है हार्डली 15 रह गए थे हमारे नरेशन वाले, वो हम अब कर लेंगे, वो हम कर रहे थे। और बाकी सारा हमारा ग्रामर का काम भी, सिंथेसिस भी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले थे, आप सबको याद होगा। तो अब आप ऐसा कीजिएगा गर्ल्स कि अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। मैंने क्वेश्चंस आपको पहले भी बताए हुए हैं, ये स्टोरीज़ वगैरह, प्लेस, पोइम्स, हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे, और मैं आपको क्वेश्चंस भी बता चुकी थी। और इसके अलावा ग्रामर का भी रिवीजन अब रह गई थी हमारी। तो गर्ल्स आप यकीनन मेहनत से पढ़ रही होंगी, अब ज़ाहिर है एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले,
तो अब फिर से हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। और जैसा कि क्लास में मैं आपको बताती हूँ हमेशा, आपने क्लास में काफ़ी दफ़ा मुझे बहुत से क्वेश्चंस कुछ लिख कर भी दिखाए हैं, तो आप याद करके ज़बानी लिखिएगा। और गर्ल्स आपने लिखना है पेपर में, ज़ाहिर है आज लिखेंगी ना आप तो आपके स्पेलिंग्स इम्प्रूव होंगे। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों तो एकदम से पेपर का इंप्रेशन जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये जब आप क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगी तो अब करेक्ट सेंटेंसेस याद कीजिएगा, किसी सेंटेंस के मीनिंग्स समझ के याद कीजिएगा। और स्पेलिंग्स जहाँ आपको मुश्किल लगते हैं उनको बार बार उसी टाइम जिस वक्त याद कर रही हैं ना, साथ अपने आप पेपर और वो बॉल पॉइंट ज़ाहिर है कि आप रखती हैं, तो आप उससे जो स्पेलिंग्स आपको ज़्यादा मुश्किल लगे उनको आप बार बार लिख लें। बेशक देख के लिखें, फिर ज़बानी लिखें, फिर देख के फिर ज़बानी लिखें। इस तरह से वो आपको ना मास्टर हो जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और याद करके आपने ज़बानी ज़रूर लिखना है, ये आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। तो गर्ल्स आप बहुत मेहनत से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टोरी जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर बात करेंगे। नेक्स्ट हम स्टोरी नंबर 8 पढ़ेंगे, जो हमने पहले भी क्लास में पढ़ी थी, एडगर एलन पो की जो स्टोरी हमने पढ़ी थी टेल टेल हार्ट, वही हम पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। ओके गर्ल्स, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।